A very warm morning to one and all present here. This is Avilasha Nahata from Layal Public School, and I'm going to teach you Rural Administration, chapter number 6 of your civics textbook. In our previous class, we discussed about the office of the SHO or the police station where Mohan complained where Mohan registered its complaint. So now our today's topic is maintenance of land records. Now you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns what land in the village? Let's find out how this is done. So when we have gone through the incident of Mohan and Raghu, when Mohan and Raghu started dealing with each other about the land boundaries, when Raghu shifted its burn to Mohan's land, then there was a heated argument between Mohan and Raghu. So now the question arises, is there any way कि वो जो है इनका जो डिस्प्यूट है वो बहुत ही पीसफुल मैनर में वो सेटल कर सके? Are there records that show who owns what land in the village? Yes, obviously land village में कितनी land किसके पास है, क्या ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कहीं पे लिखा हुआ होता है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है इससे रिलेटेड? सो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन. So measuring land and keeping land record is the main work of patwari. ठीक है, patwari. Now this is a term, new term here for you. Measuring land and keeping land records is the main work of the patwari. कि अब विलेज में लैंड, कितनी लैंड किसके पास है, टोटल कितनी लैंड आती है, कितनी लैंड किसके पास है, उसका रिकॉर्ड रखना, ये किसका काम होता है? दिस इज द वर्क, this is the main work of the patwari. Now who is patwari? The patwari is known by different names in different states. In some villages such officers are called lekpal, in others kanungo or karamchari or village officer, etc. We will refer to this officer as patwari. Each patwari is responsible for a group of villages. The patwari maintains and updates the records of the village. So now a person, a government official who is known as patwari, the main task of this government official is to measure land and to keep the land records. Okay, so this is the main work of the patwari. This is the this is the government official person. This is a government official person, and whose main task is to maintain the records of the land. Okay, so now in various villages this patwari is known by different names. This officer is known by different names. And who are these officers, and what are the names of what are the other names of patwari? Lekpal, kanungo, karamchari, village officer. Same thing. Okay, different states में different names से इस ऑफिसर को माना जाता है, इस ऑफिसर को बुलाया जाता है. ठीक है? So and each patwari is responsible for a group of villages. Maybe कुछ groups of villages जो है एक पटवारी के अंडर आते हैं कि आपके पास 10 villages हैं और आप इन 10 villages का जो land record है आप रखेंगे. ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको maintain करना है. ठीक है? So the patwari maintains and updates the records of the village. So the map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by patwari. Now there is a map given here. Just look at this map. Okay, just look at this record. Just look at this map. Okay, so this is the map. This is the record which patwari keeps with it. Okay, we will discuss about it. Okay. So the patwari usually has ways of measuring agricultural fields. अब अलग-अलग ways होते हैं, अलग-अलग तरीके वो अपनाता है fields को अपना field को measure करने के, field को नापने. Measuring means नापना. ठीक है?
जब हम बोलते हैं ना कि हमारे घर की जमीन कितनी है, मेजर करो, तो मतलब कि नापो तो सही हमारे घर की जमीन कितनी है। तो पटवारी जो है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स है जहाँ पे खेती की जाती है, उस फील्ड्स को अलग अलग तरीके से जो है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे मेजर कर सकता है। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields and compared them with the measurement on the map. So first of all, let's discuss this map given here. Okay, this is the sketch map. We already discussed about different types of maps in our geography textbook. We had this chapter related to maps where we studied different types of maps. Sketch map, what is sketch map? Anybody? So sketch map is a drawing mainly based on memory and spot observation. And this is the map given here. This is the sketch map. Dekho, some legends are there. Boundary, for boundary, they use this parallel, this single line, straight line. वेल के लिए ये वाला जो सिंबल है यूज किया है, ग्रासलैंड्स के लिए जस्ट लुक एट दिस, ये सिंबल यूज किया है, कच्चा रोड के लिए ये सिंबल यूज किया है, पक्का के लिए ये सिंबल यूज किया है, ट्री के लिए ये सिंबल यूज किया है. सो दिस इज कच्चा रोड, दिस इज कच्चा रोड, दिस इज पक्का रोड, वेल्स आर देयर, ट्रीज आर देयर, ग्रासेस आर देयर, और ये जो है लैंड बाउंड्रीज है और नॉर्थ की डायरेक्शन. सो अब ये स्केच मैप है, कौन सा है, विलेज आमरापुरा पटवारी रिकॉर्ड है, आमरापुरा का पटवारी रिकॉर्ड है. नाउ द खासरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो. खासरा मतलब जो ये लैंड रिकॉर्ड होता है ना, जो रजिस्टर होता है, उसको हम खासरा रिकॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, एक जो ड्राफ्ट बनाते हैं जिसमें हम ये लिखते हैं, ठीक है, और ये जो ड्राफ्ट बना हुआ है, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसको खासरा बोलते हैं. सो द खासरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो. इट आइडेंटिफाइज व्हिच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय होम. ठीक है, अब ये जो प्लॉट है ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्लॉट किसके पास है. Look at both the records and the map and answer the questions given below regarding Mohan and Raghu's land. Now this is areas in hectare. Hectare is a unit of measuring land. Land को measure करने की एक unit है which you will get to know more about in your further classes कि 1 hectare में कितना होता है, ये सारी चीजें आप अपनी further classes में पढ़ोगे. For now just अभी इतना ही clear रखो कि 1 hectare is the unit of measuring land. Name of owner, father or husband's names, husband's name, address. अब कौन है, owner कौन है, father या husband कौन है, उसका address. If it is rented to some other farmer, their name and rent received. अब अगर किसी को आपने रेंट पे दे रखा है तो उसका नेम लिखना है, और अगर रेंट कितना रेंट आप लेते हो उसकी इंफॉर्मेशन. फिर एरियाज कल्टिवेटेड दिस ईयर, क्रॉप्स ग्रोन, कौन सी क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो, कितना एरिया है. दूसरी कोई सेकंड क्रॉप भी आप ग्रो कर रहे हो क्या, उसके बारे में. Area not cultivated, fallow land. Fallow land, what do you mean by fallow land? Fallow land is the land, fallow land is the agricultural land which is left uncultivated. ठीक है, एक agricultural land होती है पर उसको है ना, आप उसमें कोई खेती नहीं कर रहे हो, मतलब वो उपजाऊ जमीन है पर उसमें आप कोई खेती नहीं कर रहे हो. That land is known as fallow land. Okay, so now first one is area in hectare, 0.75 hectares है. ओनर कौन है, मोहन है. नाम क्या है, सन ऑफ राजा राम है. विलेज आमरापुरा ओनर है. ठीक है, ये उसका एड्रेस है. कोई रेंट पे दिया हुआ है, नहीं. कौन से क्रॉप्स ग्रो करता है, सोयाबीन, और एरिया कितना है, 0.75. अब जो रघु है वो, उसके पास कितना है, 3 हेक्टर्स ऑफ लैंड है उसके पास. रघुराम सन ऑफ रतनलाल, विलेज आमरापुरा ओनर. रेंट दिया हुआ है, नो. कितनी, कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, सोयाबीन, वीट, और वीट इरिगेटेड. ठीक है, इरिगेटेड मतलब इरिगेट करता है लैंड को, मॉनसून पे ही, खाली मॉनसून पे ही या नेचुरल इरिगेशन फैसिलिटी पे ही डिपेंड नहीं है. एरिया 2.75 लैंड जो है वो यूज कर रहा है, और कितना लैंड वो यूज नहीं कर रहा है, 0.25 लैंड जो है, हेक्टर्स लैंड जो है वो यूज नहीं कर रहा है. वेल 1 वर्किंग, एक वेल है. फैसिलिटीज क्या क्या है, एक वेल है जो वर्किंग है. अब फिर 6 है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स. अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स ऑल्सो है.
नो। और 6 हेक्टर्स लैंड है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, ग्रासलैंड्स है, कोई इसमें रेंट वगैरह नहीं है, कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रही है, और यहाँ पे फैसिलिटीज क्या है, एक वेल है और वर्किंग ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। अब देखो ये 1 नंबर किसके लिए यूज किया हुआ है, ये 1 नंबर जो यूज किया हुआ है मोहन के लिए। जस्ट लुक एट दिस मैप, ये 1 नंबर मोहन के लिए है, ये सेकंड नंबर ये किसके लिए, ये रघु के लिए, और ये 3rd नंबर किसके लिए, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम वेल देख पा रहे हैं, ग्रासलैंड्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पे वेल देख पा रहे हैं हम। ठीक है, सो नाउ हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड, मोहन के फील्ड के साउथ में, साउथ डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, मोहन का फील्ड ये वाला है, ये मोहन का फील्ड है, तो उसके साउथ डायरेक्शन में किसका फील्ड है। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं यू हैव टू फाइंड आउट, और मैं भी आपसे पूछूंगी थोड़ी देर में, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करना। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन्स एंड रघुस लैंड, कौन सी कॉमन बाउंड्री है। हु कैन यूज फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 3 कौन यूज कर रहा है। What information can one get from field number 2 and field number 3, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें फील्ड नंबर 1 और फील्ड नंबर 2 से मिल रही है। ये क्वेश्चंस हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करो, आफ्टर दैट आई विल आस्क यू अबाउट दिस। ओके, सो जब तक हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। So the map and the corresponding details from the registers on the next page are a small part of the records kept by पटवारी। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, कितनी लैंड है, किसकी लैंड है, कितना हेक्टर्स है, कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो ड्यूटी है इस रिकॉर्ड को रखने की, वो ड्यूटी है पटवारी की। पटवारी को लेखपाल भी बोलते हैं, कानूनगो भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है। The patwari usually has ways of measuring agricultural fields. In some places, a long chain is used. In the above instance, patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields and compared them with the measurements on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. अब देखो ये जो अलग अलग तरीके हैं, अब मोहन और रघु की जो लैंड है, जब अगर हम उनको कंपेयर करेंगे मैप के, अगर वो पटवारी, if they did not match, then it would be clear that boundary of the fields has been changed. अगर वो पटवारी का जो रिकॉर्ड है और जो मैप बनाया है, अगर वो मैच नहीं करता है, तो it would be clear that जो बाउंड्री है वो चेंज कर दी गई है। Okay, so now the patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. Now the second main task of patwari is to organizing the कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड का जो टैक्स होता है उसको लेना भी किसका काम होता है, पटवारी का काम होता है। और थर्ड मेन काम क्या है, गवर्नमेंट को उन क्रॉप्स के बारे में बताना कि कौन सी क्रॉप्स जो है ग्रो हुई है इस साल। This is done from the records they are kept, and this is why it's important for them. So this work is done from the records, whatever the records that particular person, that patwari is maintaining, उसके according जो है ये काम किया जाता है। और ये पटवारी के लिए, पटवारी को टाइम टू टाइम ये जो है अपडेट रखनी पड़ती है, रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। Farmers may change the crops grown on their fields or someone may dig a well somewhere. अब हो सकता है ना, फार्मर्स आज मतलब खारिफ में जो है सोयाबीन कर रहा है, खारिफ में सोयाबीन ग्रो कर रहा है और राबी में वो व्हीट को ग्रो कर रहा है, हो सकता है ना। तो फार्मर्स जो क्रॉप्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं, और हो सकता है अपने खेत में वो जो है वेल भी जो है डिग कर ले, एक कुआं भी खोद ले, हो सकता है ना। डिग मीन्स टू मतलब खोदना, ठीक है, कुआं भी खोद सकता है, तो ग्राउंड वाटर भी यूज कर सकता है ना। तो ये पटवारी का काम होता है कि रेगुलरली ये जो खासरा होता है इस ड्राफ्ट को, इस डॉक्यूमेंट को, उसे क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। And keeping track of all these is the work of the revenue department of the government. Senior people in this department supervise the patwari's work. अब इन सब का ट्रैक रखना जो है वो किसका काम होता है, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू इज समथिंग which is tax which is taken by the government, tax which is taken by the government। जो लैंड का टैक्स होता है ना, वो जो गवर्नमेंट लेती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं।
ओके तो ये और पटवारी के काम को कौन देखता है, देख रेख करता है, उससे भी जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं सुपरवाइज करते हैं, उनका उनका वर्क वो चेक करते हैं। After that, all states in India are divided into districts. As you all know, all states in India. So who will tell me? We live in Rajasthan. How many districts are there in Rajasthan? How many districts are there in Rajasthan? Who will tell me? Prisha? गुड मॉर्निंग मैम। Yes, good morning. मैम राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। Yes, Rajasthan has 33 districts. Very good, Prisha. So all states in India are divided into districts for managing matters relating to land. These districts are further subdivided. ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट्स हैं और फिर मैनेज की लैंड से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको अच्छे से मैनेज कर पाए, उन मैटर्स को अच्छे से मैनेज कर पाए, इसलिए उसको और भी ज्यादा क्या कर दिया जाता है, सब डिवाइड कर दिया जाता है। दिस सब डिविजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुका एटसेट्रा। और जब ये डिस्ट्रिक्ट्स को और भी हम डिवाइड कर देते हैं ना, just let me draw this for you. Suppose this is a state, कोई भी एक स्टेट है, ठीक है, और उसको अब मैंने क्या कर दिया, देखो रेड बाउंड्री से मैं क्या कर रही हूं, इसको यहाँ पे सपोज मैं डिस्ट्रिक्ट्स बना रही हूं, ठीक है, सपोज दिस इज जस्ट लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, रियलिटी नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक स्टेट है, स्टेट को क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग ब्लू कलर, ओके, ब्लू कलर, जिससे कि मैं जिसका सब डिविजन कर रही हूं मैं, ठीक है, सपोज ये मैंने सब डिविजन कर दिया है, ठीक है, ये मैंने सब डिविजन कर दिया है। ये जो सब डिविजन है अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जो है जाने जाते हैं, कहीं पे उसको तालुका कहा जाता है, कहीं पे उसको तहसील कहा जाता है, ठीक है, दिस सब डिविजन इज नोन एज तालुका और तहसील इन अकॉर्डिंग टू जो भी स्टेट है, स्टेट में जो भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो सब स्टेट को डिवाइड किया फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड, फॉर मैनेजिंग मैटर्स, स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया और अच्छे से लैंड मैटर्स जो है वो मैनेज हो पाए, एडमिनिस्टर हो पाए, उसको फिर से सब डिवाइड कर दिया, और इस सब डिविजन को हम क्या बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, तालुका बोलते हैं, और भी अलग अलग नेम होते हैं। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर और आर रेवेन्यू ऑफिसर्स आल्सो नोन एज तहसीलदार्स। अब हेड कौन होता है, तहसीलदार, मतलब ये जो मैं येलो कलर यूज कर रही हूँ शेड करने के लिए, सपोज ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला ये जो एरिया है इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, इस पूरे एरिया का जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये जो येलो एरिया है पूरा जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर अलग अलग सब डिविजन्स में जो है तहसीलदार क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया है, एक सेकेंड बेटा, ये देखो जैसे कि ये वाला ले लूं, ठीक है, ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें मैंने सब डिविजन कर दिया है। अब इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का सपोज बीकानेर है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्रेजेंट कलेक्टर ऑफ बीकानेर। कौन है, हु इज द प्रेजेंट कलेक्टर ऑफ बीकानेर, यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, यू ऑल आर सपोज टू फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, अपने फादर, अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने एल्डर सिबलिंग्स अगर होंगे उनसे, उनकी हेल्प से आप ये फाइंड आउट करना और मुझे बताना कि बीकानेर का प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। अब इनके नीचे जो है बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, ठीक है, उनके रेवेन्यू ऑफिसर, सपोज यहाँ पे
यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग रेवेन्यू ऑफिसर्स काम करते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, तहसीलदार्स बोलते हैं. दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स. They also supervise the work of the पटवारीज and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. अब उनको जितने भी disputes, मतलब कोई भी quarrel है, कोई भी किसी के साथ कोई बातचीत हो गई है, कोई लड़ाई हो गई है, disputes का मतलब conflicts होता है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े या बातचीत हो जाती है, उसको हम बोलते हैं disputes, ठीक है. तो अब उनको सारे disputes को क्या करना होता है, तहसीलदार को सुनना होता है. फिर तहसीलदार क्या करते हैं, पटवारी का जो वर्क होता है उसको भी इंश्योर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि आपको कैसे काम करना है, आप अपना काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने अपना रिकॉर्ड प्रॉपर्ली रखा है कि नहीं रखा है, कितना लैंड रेवेन्यू सही से कलेक्ट किया है कि नहीं किया, ये सारा सुपरविजन तहसीलदार करते हैं. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record, students can obtain their caste certificates, etc. The Tehsildar's office is where land disputes are also heard. अब देखिए इनका जो मेन काम होता है तहसीलदार का, क्या काम होता है, तहसीलदार क्या करते हैं वो ये दे मेक श्योर दैट जो फार्मर्स हैं उनको उनके लैंड रेवेन्यू जो भी रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड की कॉपी उनको इजीली मिल जाए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है. तहसीलदार के ऑफिस में और क्या होता है, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन जो भी एरिया उनके अंडर आता है उनके डिस्प्यूट्स को भी सुनने का काम किसका होता है, तहसीलदार का होता है, ठीक है. अब देखो हमने 3 चीज पढ़ी. ये देखो सपोज दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट, तो इसके हेड कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. फिर हमने पढ़ा तहसीलदार अंडर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर वर्क करते हैं, और उसके अंडर हमने पढ़ा पटवारी जो तहसीलदार जो है उनके अंडर वर्क करते हैं और तहसीलदार उनको सुपरवाइज करते हैं. ये 3 चेन पढ़ ली हमने, ठीक है. नाउ just look at this information. Farmers often require a copy of their land's record together with a map. As shown in the previous illustration. Illustration का meaning क्या होता है, example. जो हमने last page में अभी example पढ़ा ना, उसके according एक जो farmer है उसको land record की copy मिलती है और उसको एक rough जो है एक map भी मिलता है. They have a right to this information. They have this right. उनको इनका ये मतलब you can say कि legal right है. They may have to pay a small fee for this. हो सकता है थोड़ी बहुत फीस इनको पे करनी पड़े. However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it. Sometimes क्या होता है, farmers को easily नहीं मिल पाती है उनकी जो information है, ये जो copy वगैरह है और map वगैरह है, उनको बहुत problems face करनी पड़ती है. In some states, records are now being computerized and also kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated. अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कर दिया है कि रिकॉर्ड्स को जो है कंप्यूटराइज्ड करें और उनको पंचायत ऑफिस तक भी पहुंचाया जाता है, पंचायत ऑफिस में भी रखा जाता है, जिससे कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो इजीली उन्हें मिल सके जो भी फार्मर्स हैं. When do you think farmers may require a copy of this record? Study the following situation and identify the cases in which these records would be necessary and why. अब आपको क्या लगता है कि ये जो फार्मर्स हैं उनको ये रिकॉर्ड की कॉपी कब चाहिए होगी, ठीक है. हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ केसेस. अ फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर. अगर किसी फार्मर को दूसरे फार्मर से कोई प्लॉट खरीदना है, कोई लैंड खरीदना है, तब ये कॉपी चाहिएगी. A farmer wants to sell her produce to another. जो भी प्रोडक्शन है अगर किसी को बेचना है उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी. A farmer wants a loan from the bank to dig a well in her land. कि उसे कुआं खोदने के लिए बैंक से लोन चाहिए तो उस टाइम पे उसे जरूरत पड़ेगी. A farmer wants to purchase fertilizers for his field. फर्टिलाइजर्स परचेज करने तब चाहिए होगा. अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन. एक फार्मर है, उसे अपने बच्चों के बीच में उसकी प्रॉपर्टी क्या करनी है, डिवाइड करनी है, तब उसे चाहिए होगा. तो these are some of the situations when farmers need this record which is made by पटवारी. जो ये पटवारी रिकॉर्ड बनाते हैं ना उसकी इनको जरूरत पड़ती है, ठीक है. अब एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं. एक डॉटर्स विश.
father inherited our house from his father. Inherited मतलब कि पुरखों ने हमें जो है ये जो हाउस है हमारे जो पूर्वज है उन्होंने दिया है, ठीक है, उनके फादर ने उनको दिया है. एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर. और सब बोलते हैं ये घर जो है मेरे भाई के लिए जो है मेरे पापा छोड़ के जाएंगे, पर मेरा क्या, मेरी मदर का क्या, मेरी माता का क्या. To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. अब उनको उसको क्या बोला गया कि अपने पापा का, अपने फादर का घर में अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई शेयर मिले तो वो बहुत ज्यादा वुमेनली नहीं होता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है, उसको ऐसा बताया गया. बट आई रियली वांट अ प्लेस ऑफ माय ओन, नो नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड. अब बोल रहे हैं मुझे खुद की एक जगह चाहिए, खुद का एक प्लेस चाहिए जिसे मैं अपना खुद का घर कह सकूं, ठीक है. मुझे डाउरी मतलब दहेज में मुझे सोना या चांदी या बहुत सारे सिल्क के कपड़े नहीं चाहिए, मुझे खुद का एक घर चाहिए जहां मैं रह सकूं, जिसे मैं खुद का बोल सकूं. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन जिसमें एक डॉटर की जो है विश को जो है बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, और उससे कैसे इनइक्वालिटी जो है हमारे इंडियन सोसाइटी में जनरेट की गई हुई है, जो हुई हुई है बॉयज और गर्ल्स के बीच में, तो उस चीज को इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है. सो दिस वाज रिटन बाय अंजलि मॉन्टेक्यू, ठीक है, उनकी भी फीलिंग्स हम समझ सकते हैं. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि इसके लिए ये जो डॉटर्स विश है इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई लॉ वगैरह लेकर आई कि नहीं लेकर आई. तो ये छोटा सा पैराग्राफ है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. So this is all about today class. Thank you so much for joining the class everyone. Bye bye, take care.